Glenfish Group is a business organization which was formed 2 years ago by a group of doctors and healthcare professionals, experts in Hyderabad, Telangana in India. This group operates business sectors such as real estate, petroleum, construction and building, educational institutes, offline and online education, diagnostic services, clinics, free educational career guidance center. Our main aim is to improve health education awareness among backward minorities. We are working tirelessly to provide opportunities for economic development through vocational training, finance and guidance. Now, I would like to call Tasneem Madam to go further. Alliance with Galaxy Foundation. After the observation of healthcare experts during COVID pandemic, we have seen that there is a lot of scope and job opportunities and good pay scale in paramedical platform. Since then, we got an idea to promote paramedical education in backward minorities free of cost. And to implement this idea, we shake hands with Dr. Sheikh Hussam sir, who himself is a pioneer in paramedical field, and now we are running almost 30 paramedical job-oriented courses free of cost. Thank you, Hussam sir, for providing us necessary help to fulfill our vision of serving needy. Now I would like to call our beloved principal, Mr. Mohammad Mujibur Rahman, to introduce the guests. Assalamu alaikum. Respected guests, all guests are respectable. Sheikh Hussam sir and Kamaluddin sir, Mr. Kamaluddin sir, Mrs. Firdaus Kamaluddin, Sara Sattari sir, Madam, and Dr. S.M.H. Khadri sir, and Mr. Sayyid Amir Khazi sir, and Mr. Muhammad Shaukat Ali sir, Mr. Muhammad Salimuddin sir, and Dr. Noor Muhammad sir, and Sayyid Noor Sufi sir, Harun sir, आपका नाम रईसुद्दीन, एंड मिस्टर रईसुद्दीन सर, सब आपके लिए वेलकम है सर। ये गैलेक्सी फाउंडेशन एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए सर, एंड प्लीज। Thank you, sir. I'd like to give brief introduction about the achievements of Dr. Syed Jafar Nader. He is the youngest and the dynamic doctor with a pleasant personality. Dr. Jafar has done his MBBS MD from Deccan Medical College and DM from CARE, Banjara Hills. He started working in Medwin as an assistant city surgeon and got promoted as syllabus coordinator for paramedical courses run by different universities such as Maulana Azad University, Dr. Ambedkar University, Osmania University, Sikkim Manipal University, NIMS University, Jaipur and DME. After that, he joined Osmania University as course coordinator for advanced PG diploma courses in healthcare sector and got promoted as principal. Then got transferred to Indo-US Hospital along with clinical practice. Sir continued to work as an administrator of Indo-US Hospital. With this wide range of experience in clinical and healthcare sector, Sir established Glenfish Group, which is a business firm running several projects under his supervision with great success, alhamdulillah. Now I would like to invite our MD, Dr. Jafar, to present the report of our achievements which we have done in the previous months. Give a big hand. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों को चुन लेता है उन्हीं से खिदमत लेता है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे ऐसे सेंटर्स
क्या ना 17 ब्रांचेस चल रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, तो जिसमें से एक जाफ़र साहब यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बच्चे एक डायनेमिक बच्चे बने और ये बच्चे लीड करें। आप लोग आपके जो सर हैं वो सर जिस तरीके से आप लोगों को टीच दिए हैं वैसे लीड करें। आप क्या है बताओ ना, इंडिया के हर प्रोजेक्ट्स पे, मेडिकल के प्रोजेक्ट्स पे अब मैं इतना बिजी शेड्यूल है, आज मैं एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का आज एक इंस्पेक्शन है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो मैं काले पत्थर पे कल एक दिन में वो प्लेस और वहाँ पर एक 20 मशीन्स परचेस करा मैं एक ही दिन में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का आज इंस्पेक्शन से बोल के। तो और कल ने परसों से इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन सेंटर है, तो वो एग्जामिनेशन डीओ स्क्वाड्स वगैरह भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को भी हैंडल करते हुए जाफ़र साहब की ये आज हम एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, जो एनजीओज़ के हमारे एक्टिविटीज़ जो हम बताना चाह रहे थे। अब हमारे पास सलीम साहब भी हैं, आप वहाँ पे करीमनगर में भी मेरे को एक ब्रांच वहाँ पे स्टार्ट करो सर आप बोल के बोल रहे, तो मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे करीमनगर में भी हम लोग स्टार्ट करने के वास्ते जा रहे हैं। तो ऐसे लॉट ऑफ क्या बताना प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग पैसा के कमाने के मकसद से नहीं है, ये हमारा सरमाया जो भी रहेगा ये सरमाया ये आप लोग रहेंगे। आप लोग अगर क्या है बोले तो ना, अगर डेवलपमेंट्स रहेंगे, आपके पास स्किल्स रहेंगे, आप अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, आप अगर हुनर बनेंगे, आप अगर एक बेरोजगार को ख़त्म करके रोजगार बनेंगे, हम लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ये 10 फरवरी को एक यूरोपियन कंट्रीज का एक इवेंट करे थे, ताकि हम यूरोपियन कंट्रीज को भी हमारे बच्चों को क्या बताना टाई अप में होना है। गैलेक्सी एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लॉट ऑफ इंडिया के जितने यूनिवर्सिटीज़ है, पैरामेडिकल बोर्ड्स है, टेक्निकल्स बोर्ड्स है, उसके पूरे रजिस्ट्रेशंस मेरे पास है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हर वो ब्रांच पे हर वो चीज़ बच्चों को बेनिफिट्स होना है। जो हम स्किल डेवलपमेंट्स के जो प्रोग्राम्स जीडीए के जो प्रोजेक्ट लिए हैं, जो फ्री कोर्सेज रखे थे, वो फ्री कोर्सेज के लिए आप लोग खुशकिस्मत हैं जो जाफ़र सर जैसे आपको फैकल्टीज मिले और आप लोग क्या ना मल्टी टैलेंट आपके पास नॉलेजेबल है। ऐसे कई ABBR इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कई मैट्रिक्स बोल के कॉलेज है जो मेरे कॉलेज से क्या बताना फॉरवर्डिंग होती है, एक विक्टर कॉलेज है, ऐसे 17 ब्रांचेस है जो जिसमें से ये एक ब्रांच ये भी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या बताना हर वो बच्चा अपने आप को ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप मेडिकल कोर्सेज में जाइए। आपका डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, नॉट ओनली इंडिया में, आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ या यूरोपियन कंट्रीज में जाओ। 110% मैं ये भी एक अपने शोल्डर्स के ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग दे के छोड़ देने वालों में से नहीं हूँ मैं। आप लोगों को आपके पाए तक आप लोगों को पहुँचाना है, आप लोगों को जॉब दिलाना मेरा फर्ज ही नहीं है। मैं अपने आप को ये काबिल जब समझूंगा कि आप लोग क्या बताना जॉब चढ़ेंगे, जब आप अर्निंग हासिल करेंगे, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये अपने आप को ये समझूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती होते हुए मैं एक हक अदा किया बोल के। तो मेरी ये कोशिश, ये मेरी एक जुस्तजू, ये हर उम्मत मुसलमान के लिए नहीं है, इसमें हमको सिर्फ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, हम नॉन मुस्लिम्स भाइयों को, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारा फर्ज है कि उन लोगों तक भी हमारा पैगाम पहुंचाना है और उन लोगों को भी इस कार्य खैर में क्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम लोग उन लोग को भी ज्वाइन करेंगे। हम आज क्या है गैलेक्सी के नाम से कर रहे हैं, हम ये एक प्लेटफॉर्म भी हम बहुत बड़ा एक आगे बढ़ाने की प्लानिंग में है। एक उम्मत फाउंडेशन बोल के हम लोग एक इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। इसमें से जो प्रोजेक्ट पे काम रहेगा उम्मत फाउंडेशंस में, बेरोजगारी को टोटली ख़त्म करना बोल के, कोई बच्चा कुछ चबूतरा मशीन पे नहीं बैठना है, हर बच्चा क्या बताना जॉब पे रहना। मेरा एक अपना टेंशन है मेरे पास कि मैं ये अपने जिम्मेदारी समझते हुए चबूतरा मशीन को क्या बताना बर्खास्त करते हुए बच्चों को रोजगार में लगाना और उन लोगों को हुनर, टेक्निकल, प्रोफेशनल्स क्या बताना स्किल सिखाना। लॉट ऑफ मेडिकल में एनेस्थीसिया है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन से, डायलिसिस टेक्नीशियन से, OT टेक्नीशियन से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टेक्नीशियन से। ये अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिला तो अपने लैब्स
स्टार्ट कर ले सकते हैं, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरे यूनिट डाल के एक्सरे यूनिट से ऐसे कई मेरे पास 50 बच्चे ओन इस्टेब्लिशमेंट्स करे हुए हैं, उन लोग डायग्नोस्टिक सेंटर डाले हुए हैं, ओन क्या बोलते ना जो बीएससी नर्सिंग करे हुए उन लोग डॉक्टर्स को मैं प्रोवाइड करते गए, उन लोग नर्सिंग रूम चला रहे सो हैं। तो बीएससी नर्सिंग बच्चियां भी क्या बोलते ना टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, कई गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, कई दक्कन मेडिकल कॉलेज में और असरा हॉस्पिटल में, दुर्रेश्वर हॉस्पिटल में, केयर हॉस्पिटल में, कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में बच्चे गैलेक्सी के बेनिफिट्स उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी मैं खाली नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, आप लोगों को भी जॉब्स क्या बोलते ना 100% हम लोग इंशाअल्लाह ताला प्लेसमेंट देंगे। और आप लोग अपनी एजुकेशन को कभी स्टॉप मत करिए, लाइफ में एजुकेशन कभी स्टॉप मत करिए। आप अगर ये एक फ्री कोर्स जीडीए का कोर्स कर लिए, उसके साथ साथ आप क्या बोलते ना वोकेशनल करिए, वोकेशनल कर लिए तो उसके बाद ग्रेजुएशन जो कोर्सेज है मेडिकल के कोर्सेज है वो मेडिकल कोर्सेज करिए, मेडिकल कोर्सेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में पीजी के लेवल पे कोर्स करिए। मेरी ख्वाहिश है कि हम जाके अगर हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी को अगर देखेंगे तो वहाँ पर हमारा 0.0001% स्टाफ दिखेगा जो मुस्लिम्स बच्चे रहेंगे। जब हमारे आबो अजदाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट करे, हमारे बच्चे हमारे बॉयज़ या गर्ल्स वहाँ पे क्या बोलते ना स्टाफ नहीं बन के रहते हैं, इतनी दिल को क्या बोलते ना कोफ्त होता है कि क्या बोलते ना हमारे बच्चे वो लेवल पे यूनिवर्सिटी के लेवल पे प्रोफेसर्स बने, वहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स बने। आप जब ऊंचे मुकाम पे जाएंगे तो वहाँ पर सीट हासिल करेंगे, अगर आप वो मुकाम पे नहीं जाएंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो उन लोग कर रहे हैं वो भी हमारे भाई, हमको कोई गिला वो नहीं है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग के पास भी वैसे स्किल्स, वैसे प्रोग्राम्स, वैसे टेक्निकल्स प्रोफेशनल्स आप लोग जब बनेंगे, जब हम अपने आप को ये समझेंगे कि क्या है हम लोग जो खैर का काम लेके एक उम्मत फाउंडेशन को लेके आगे बढ़ने का काम लेने की जो जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें हम कामयाब रहेंगे। बल्कि मेरे को अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमको खूब ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की हमको तौफीक अता फरमा और इनको खूब बच्चों को क्या है अपना जौमा दिलाने की हमको तौफीक अता फरमा। सिर्फ हैदराबाद में बोल के नहीं, इंडिया के कौन से भी कोने में या अल्लाह उन सबको रिस्क के दरवाजे खोल दे और रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके घरों पे रहमत का मामला अता फरमा, करम का मामला अता फरमा। यहाँ पे जो गेस्ट है अल्लाह उन लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती अता फरमा और फतेह नुसरत कामयाबी नसीब फरमा। हमारे अंदर एकजुट होकर काम करने की हमको तौफीक अता फरमा, हमको फतेह नुसरत कामयाबी नसीब फरमा। और जहाँ पर यहाँ पर जो गेस्ट है मेरे से उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ, भाई अपने लिए, अपने नाम के लिए और अपन पैसे कमाने के लिए नहीं, कौम और मिल्लत के लिए भाई आप लोग अभी अपने आप को सिर्फ आप वक्त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरे पास लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, लॉट ऑफ वर्क्स है। तो अगर आप कौन से भी अब एक इंस्पेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिशियंस जो JSS क्या बोलते हैं जन सख्ता संतान बोल के है, वो प्रोजेक्ट का एक इंस्पेक्शन चल रहा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का एक प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं टेलरिंग के लिए हम लोग वहाँ पर जो गरीब बच्चे जो बेवा डाइवर्स वगैरह हो रहे हैं उन लोगों को एप्रॉन सिलाने के वास्ते हम वहाँ पर देंगे और स्कूल्स के बच्चों को ड्रेसेस, स्कूल के ड्रेसेस सिलाने के वास्ते वहाँ पे मैं मशीन परचेज करा। वो प्रोजेक्ट का जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग फ्री, साथ में क्या है बोलते ना हम लोग प्रोडक्शन यूनिट से हम लोग ज़्यादा उसको हम डालेंगे। तो ऐसे लॉट ऑफ वर्क है। ये ऑर्गेनाइजेशन से जाफर सर से, हुसाम सर से आप जुड़ के क्या है बोले तो ना रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिस्मत और आपको कामयाबी आपको इंशाअल्लाह ताला कदम ज़रूर चूमेगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे और एक दूसरों को हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद करने की हमको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कि आज जो है तो हम ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं कि जहाँ पर इल्म जो है तो फैल रहा है, फूल रहा है। हमारे पास सबसे ज़्यादा सब ज़रूरत जो है इल्म की है। आप अगर गौर करें तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 76.4 है और हमारा लिटरेसी रेट क्या है 54.3 के आसपास कुछ है। मतलब हम लोग नेशनल एवरेज से भी नीचे हैं।
तो इल्म फैलाना बहुत ज़रूरी है, और आज जो काम हो रहा है ये इल्म फैलाने का काम हो रहा है। अब इल्म के अंदर दो चीज़ें आती है, 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो काम हुसैन साहब ने लिए हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, और डॉक्टर जाफ़र साहब जिसको लीड कर रहे हैं, आज सब ज़रूरत सिर्फ इल्म से काम नहीं बनता है, इल्म के साथ हुनर भी ज़रूरी है। इल्म करके बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है। आज इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया है, पिछले कई वर्षों में नहीं था, आज उतना है था। ख़ास तौर से जो पैंडेमिक हुई उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है। तो आज हमको हुनर की सख्त ज़रूरत है, और ये आज जो काम हो रहा है ये हुनर वाला काम है, और हुनर से एक और चीज़ बनती है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बनती है। तो बहुत खुशी की बात है कि मेडिकल फील्ड में आप लोगों ने काम शुरुआत किया है। हमारी दुआ है और कोशिश है, रोज़ाना से एक छोटा मशवरा है कि हम लोग सारे फील्ड में काम करें। एक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मेडिकल में नहीं बल्कि हर फील्ड में ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है, एजुकेशन में ज़रूरत है, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन, कई फील्ड है, हमारे जितने फील्ड है। तो आप ये मोटो जो है, और जो उम्मत फाउंडेशन की बात की हुसैन साहब ने, तो हम लोग हाजिर हैं। हमारे से जो खिदमत करनी होगी हम हाजिर देने के लिए तैयार हैं। और आज जो अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला फरमान है सूरह ज़ुमर का, कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, तो वो आप लोगों ने साबित कर दिया है कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला एक जैसा नहीं होता है। और जैसे कि अभी जाफ़र साहब बता रहे थे कि मेडिकल प्रोफेशन में जब देखते थे, पैरामेडिकल में हमारे लोग मिलते नहीं थे, और वैसा ही जो है तो यहाँ का उस्मान यूनिवर्सिटी का हुसैन साहब ने बताया। ये वजह क्या है? अगर इसके पीछे देखें तो इल्म की कमी। अगर इल्म होगा, आज हमारा हार्डली ग्रेजुएट जो तो 2.2% है, तो ग्रेजुएशन हमारे पास नहीं हो रहा है तो आगे कहाँ जाएंगे? तो अगर ये हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, इसके साथ तालीम भी रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारी उम्मत के ज़रूर जो है तो नक्शा बदल जाएगा। और इल्म हम जितना फैलाएंगे, इल्म से सारी चीज़ें मिलेगी। अल्लाह ने इल्म का वादा नहीं किया कि मैं तो इल्म दूंगा, अल्लाह ने वादा किया है रिज़्क़ का। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला इल्म के बारे में नहीं बोलते कि मैं सबको इल्म दूँ। इल्म हमारी कोशिश से मिलता है। तो ये कोशिश हुसैन साहब के ज़रिए शुरू हुई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे और इसको मज़ीद बढ़ाए, और इसमें जो है तो लोगों का और ताउन मिले और उम्मत के हालात बदले और हम लोग एक बेहतरीन उम्मत में तब्दील हो जाए। आज के हालात जो है तो हम लेने वाले बने, हम कल देने वाले बन जाए, बस यही दुआ है। और अल्लाह ताला जो है तो ये कारवान को आगे बढ़ाए। हमारे लायक जो खिदमत इंशाअल्लाह ताला, हमारे खिदमत भी हुसैन पता है, हमारे कई फील्ड होते हैं, उसमें एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कई काम चलते रहते हैं। अभी एक बात मतलब बोल के बात ख़त्म कर दूँ कि हम लोगों ने इल्म के फील्ड में एक डिजिटाइज कोर्स तैयार किया है जो इल्म दीन को हुसैन साहब पर चल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इल्म दीन भी इतना ही अहमियत के साथ सीखा जाए, क्योंकि इल्म की वो तफरीक नहीं होती है, इल्म सब इल्म होता है, इल्म दीन भी ज़रूरी है, तो वैसे इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Call Dr. Mohammad Salimuddin sir to say few words. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि हमारे अंदर भी कुछ हुसैन साहब जैसी शख्सियतें उभर रही हैं। या अल्लाह को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सलाहियत में और इजाफा फरमाए। मैं बात करने से पहले एक वाक़या आपकी तवज्जो का ताल्लुक़ हूँ। मैसूर के अंदर काफ़ी अमवात हुई, काफ़ी लोग मरे बीमारी की वजह से, कोरोना की। तो उसमें मुसलमानों को जगह नहीं मिली थी, वैसे काफ़ी लोगों को जगह नहीं मिली थी, इसलिए झाड़ों के नीचे और कहीं ज़मीन पे ही लेकिन उनका इलाज चल रहे थे। तो वहाँ के बुजुर्ग मुसलमानों ने ये तय किया कि क्यों ना हम एक छोटा सा दवाखाना खोल लें। एक छोटा सा दवाखाना खोले जिसमें 28 पेशेंट को एडमिट किया गया, उतनी ही उनकी कैपेसिटी थी। तो ये अल्लाह का फजल है कि पूरे के पूरे अच्छे होकर चले गए कोरोना से। और दूसरी बात खुशी की ये है कि इसमें से कुछ लोग गैर मुस्लिम भी थे। तो ये गैर मुस्लिम जिसके 3 भाई थे, 2 भाई पैसे वाले थे, वो बड़े दवाखाने में शरीक हो गए, और एक बेचारा ये छोटे गरीब लोगों के अस्पताल में आकर शरीक हुआ। और नतीजा ये हुआ कि वो भी अच्छा होकर चले गए। अलबत्ता उसके दोनों भाइयों की लाशें 25-30 लाख रुपए खर्च करने के बाद में लाशों को ले लेके अपने घर आ गए। तो जब वो
ब्राह्मण मारवाड़ी जो है घर को जाकर बोला कि साहब आप लोग कल आप लोग रहेंगे ना यहाँ पे? हाँ साहब। तो दूसरे दिन आया, आके बोला साहब 30-30 लाख 40-40 लाख मेरे भाई, 2 भाई भी है पैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन वो लोग बच नहीं सके, लेकिन 15,000 में आप लोग मुझे अच्छा कर दिए। इस खुशी में मैं आपको ये 10 लाख रुपए आपके लिए मैं देता हूँ। ये 10 लाख रुपए में आप इलाज हो गया, अच्छा हो गया, चले गया, लेकिन जो लाखों रुपए खर्च करे वो बच नहीं सके। तो मैं दोस्तों, ये है हमारी कौम की मेहनत और एकजुटती का, यानी 10 लोग मिलके, 10 मस्जिद वालों ने मिलके ये काम किया। तो इंशाल्लाह आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग हमारे पास हैं जो बेकार फिर रहे हैं, ये नौकरी नहीं है। अगर हुसाम साहब जैसी शख्सियतें वहाँ पर भी होती तो शायद काफ़ी। तो ज़रूरत हमारी इस बात की है कि आप सब लोग भी कोशिशों में, और आपको गरीब का ये खुदनुमाई के लिए नहीं बल्कि इस पर तो करीम नगर के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पेद्दापल्ली से लेके रामागुंडम तक और क्या बोलते हैं मंचिरियाल तक। तो उस वक्त हम गए, भाई साहब हमारे साथ बच्चों को कोई लेते नहीं, आप लोग मुसलमान हैं, ऑफिसर्स हैं, कम से कम हमारे थोड़े बच्चों को नौकरी रखाइए। तो ना बोले कौन है आपके जिम्मेदार? चलो भाई हो। तो बोले कि आप एक काम करो, बच्चों को 10वीं पास करा दीजिए या ITI में दाखिला दिला दीजिए, तो इंशाल्लाह आप जितने देंगे मैं उतने इंडक्ट करूँगा। तो बहरहाल उस दिन हम लोग बुला के पूरे करीमनगर शहर के करीमनगर को बुला के पूरे मस्जिद के लोगों को बुला के मैं रिक्वेस्ट किया कि साहब ऐसा वादा किए हैं कि जॉब मिल सकती है। पेद्दापल्ली में रामागुंडम तक कई जॉब्स हैं, तो एक काम करना है, हम लोग जो है सो ITI खोलेंगे यहाँ पे। तो पूरे लोग जो हंस रहे थे पीछे से उठ के चले गए, सलीम साहब आपका ज़रा दिमाग सही नहीं काम कर रहा। ITI क्या आप मुखफ़म जा हैं या मुकरम जा है या कोई निज़ाम सरकार है? आप कैसा बोल सकते हैं? ITI बच्चों का खेल है, 2 एकड़ ज़मीन चाहिए, उसमें इंडस्ट्री चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, आप कैसा खोल सकते हैं इस छोटे से ज़िले में? तो मैं बोला देखो साहब, जो लोग भी इत्तेफाक रखते हैं, जो लोग भी इसके लिए तैयार हैं, वो लोग रुक जाइए, बाकी के आप लोग जा सकते हैं। तो वो लोग चले गए, 1-2-3 लोग अच्छी किस्म के आप जैसे, तो आप बैठे रहे। उसके बाद बोले क्या होना, 2 एकड़ ज़मीन होना। तो चलो भाई एक साहब के पास लैंडलॉर्ड शेख साले साहब वहाँ के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास गए। तो उन्होंने बोले कि ये तो सही है, लेकिन डॉक्टर सलीम साहब तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जॉइंट डायरेक्टर है, किधर भी ट्रांसफ़र हो सकता है इनका, मैं इनको कैसा भरोसा कर सकता हूँ? ऐसा आदमी जो ये मुस्तकिल यहाँ पर है कि ये काम करे, मैं उसको मान लेता हूँ। तो मैं बोला साहब मैं कुछ भी कोई भी ऑफिसर हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर ये काम मेरी नौकरी की वजह से अगर चले जा सकता है, तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं जॉब को रिज़ाइन करके इस काम में लग जाऊँगा। तो उसी वक्त उन्होंने जाके 2 एकड़ ज़मीन मार्केट करा दिया। तो इसी तरीके से हमारा कारवान शुरू हुआ, और देखते ही देखते साल 2 साल के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बन गया, जिससे हज़ारों लोग बच्चे पढ़े और बाहर चले गए। और एक बार ये वाकई में बस पे चढ़ रहा था, तो लोग एक उठ के मुझे दे रहे थे, बोला क्या बात है, आप लोग बैठिए ना साहब, बैठिए। तो नहीं साहब, हम आपके ITI से ही पढ़े हैं, हम कुवैत में काम कर रहे हैं, हम सऊदी में काम कर रहे हैं, हम आए हुए हैं साहब, आप लोगों की तरफ से आपकी तनख्वाह कितनी है? मतलब करीब 1 लाख है साहब, अल्लाह के। तो मेरे दोस्त, कोशिशें छोटी होती है लेकिन इसके नतायज बहुत बढ़ जाते हैं। आज हमारे पास हमारी ओन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है ना 6 या 7 करोड़ की है, 6-7 करोड़ की है। मैं दावत दिया हूँ कि ये आपका हुसैन साहब आइए और करीमनगर में इस प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। पैरा मेडिकल कोर्स से भी ऐसे ही सक्सेस हुआ जैसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ। तो मेरे दोस्त, वहाँ वही जहाँ है तेरा, अल्लामा इकबाल का शेर है, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये सन-ओ-फिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। तो बहरहाल मैं बहुत मुबारक देता हूँ आप सब लोगों को, और मैं भी मुबारक ख़ास तौर पर हमारे हुसामी साहब को देता हूँ कि अब उनके ज़रिए उनकी सरपरस्ती में करीमनगर में पैरा मेडिकल, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर न सिर्फ पैरा मेडिकल बल्कि मेडिकल कॉलेज भी हो सके।
ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीम अज़्म करना आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, बशर्ते कि सच्ची खिदमत के साथ हो। मैं बहुत देर बात कर चुका, सिर्फ 5 मिनट दिया गया था। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब मिल के और हम सब मिल के और ख़ासकर को सब मिल्लत उम्मत फंड जो कायम कर रहे हैं, पूरे ऐसे ही माइनॉरिटी इदारों को एक जगह करने का, इससे हमारी क़ुव्वत बहुत बढ़ जाएगी और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस अजीम काम को शुरू करने से। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Mohammad Raisuddin sir to say a few words. Give them a hand. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हुसाम साहब को ये मौका दिए, इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर एक ग्लोबल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी विजयनगर कॉलोनी में हम चला रहे हैं। उसमें सिर्फ टॉस यानी ड्रॉप आउट्स को लेकर और हुफ़ाज को 10th और इंटरमीडिएट के टॉस एग्जामिनेशन 3 साल से दिला रहे हैं। और उसके अलावा झिर्रा में एक गंजे शहीदा दारुल उलूम है, वहाँ पर दीनी कोर्स चलता है। उसमें हम जो है सो उन बच्चों को असरी तालीम के लिए उनसे जाके रिक्वेस्ट करें तो वो सदर साहब वगैरह मान ले। शुरू में हमको एक आध पीरियड पढ़ाने के लिए देते, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चलने से वो लोग सेकंड सेशन पूरा, दोपहर का सेशन पूरा हमको दे दिए। सुबह में दीनी तालीम चलती और बाद में जो है सो असरी तालीम चलती। उन सब बच्चों को इंशाअल्लाह हम 10th का टॉस एग्ज़ाम दिलाने के लिए उनकी तैयारी चल रही है। फिर हमको जब डॉक्टर हुसाम साहब से मुलाकात हुई, इत्तेफाक से साहब फरमाए थे भी JSS के बारे में, वहीं से भी हम उनको एक टेलरिंग सेंटर को JSS से हम भी टाई अप करे थे, वहीं पर मुलाकात हुई थी। फिर साहब से हम उनसे मिलने आए इसलिए कि ये पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे बोलकर। हम इंशाअल्लाह अगर उनकी मदद से यहाँ पर भी नोबल एजुकेशन सेंटर से विजयनगर कॉलोनी में ये पैरामेडिकल कोर्सेस इंशाअल्लाह चलाएंगे, प्रोवाइडेड उसमें डॉक्टर साहब की इसमें कोऑपरेशन और गाइडेंस की ज़रूरत है। भाई करीमनगर में भी हमारा इंशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहब का है प्रोग्राम, वो 2 भी एक साथ इंशाअल्लाह शुरू करने की कोशिश करेंगे। अब सबको मैं मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। Now I would like to call Mr. Sayyid Kamaluddin Khadri sir to say a few words. अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट का, MD सर का और हुसामुद्दीन साहब का जो हमको यहाँ पर आज इनवाइट किए हैं, और ये सारे मैनेजमेंट को और सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ उनका 1 साल कंप्लीट करने पर, पहला बैच कंप्लीट करने पर। और स्पेशली उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें कामयाब हुए हैं आज, जो अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, और वो सारे लोग भी काबिल मुबारकबाद है। और मैं चाहूँगा आप लोग अपने अच्छे एफ़र्ट्स लगाएं और कुछ आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें ज़िंदगी में। यही कोशिश इस मैनेजमेंट की है और यही कोशिश आपकी भी होनी चाहिए। और यहाँ के तमाम मैनेजमेंट को मैं फ्यूचर के लिए उनके जो खिदमात है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और अपनी सारी विशेस, बेस्ट विशेस और दुआएं उनके साथ है, जो वो एक सच्चे अच्छे अक़ीदे के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। वो इंटेंशन कभी भी नाकामयाब नहीं होगा, डेफिनेटली ये ज़रूर कोशिश कामयाब होगी। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक नादिर सर एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट के यहाँ पर इनवाइट किया गया। फिर साथ ही साथ में आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्व्स कि आज आप लोग कामयाब होके कुछ प्रूफ किए हैं। एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मैनेजमेंट हुसामुद्दीन सर एंड नादिर सर कि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आप लोग के लिए बनाई है, आप लोग के लिए प्रोवाइड की है, जो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को तरसते हैं। एम आई राइट?
Especially I am addressing, I would like to thank all the dignitaries, but I am addressing to the students specially कि आप लोग के लिए जब ये लोग इतना सोच सकते हैं तो आप आपके लिए कितना सोचना चाहिए? Am I right? ये लोग आपके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, ये लोग तो अपना हक अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एजेंडा लेके चला जा रहा है कि यूथ का एम्पावरमेंट, यूथ से कौन ज्यादा कांटेक्ट में है, आप लोग या मैनेजमेंट? राइट, ये यूथ ही यूथ से ज्यादा कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर ये लोग तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि इनके साथ साथ आपका भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता है? प्लीज आंसर मी। तो आज आप लोग इन लोग को थैंक्स करते हुए हर स्टूडेंट एक डिसीजन लेके जाए कि ये लोग हमारे लिए इतना बेहतर कर सकते हैं, यूथ का एम्पावरमेंट का सोच सकते हैं, तो हम भी हमारे यूथ के एम्पावरमेंट के लिए कुछ करेंगे। डू यू एग्री? आर यू रेडी? तो आज हर कोई ये सोच के जाए कि हम अपने जैसे कम से कम 2 से 3 लोगों को यहाँ पर लाएं, ये चीज़ प्रमोट करें। उनको कौन ज़्यादा अवेयर कर सकता है, आप या मैनेजमेंट? आपके जो नॉन लोग हैं, आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, उसको मैनेजमेंट से ज़्यादा आप कन्विंस कर सकते हैं, आप उनको इसका बेनिफिट बता सकते हैं, आप उनको ये अपॉर्चुनिटी उन लोग के लिए कितनी अहम है इसका अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हर स्टूडेंट, आज 40 स्टूडेंट्स यहाँ पर कामयाब हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ही मुबारकबाद है। लेकिन साथ ही साथ हर 40 स्टूडेंट आज एक डिसीजन लेके जाए कि हम अपने जैसे कम से कम 3 स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयर करेंगे और ला कर यहाँ पर एडमिशन दिलाएंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो बट यहाँ पर जो निदा मैडम, तस्नीम मैडम, अंजू मैडम है, वो लोग नोट डाउन करें। दे आर रेडी, 40 स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर 3 स्टूडेंट्स। सो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर? 120. Okay, so just go through with this. Thank you very much. Thanks to the management as well. Thank you so much for coming, everyone. I would like to call. 2 minutes. उन्होंने बोले और 5-6 जगह है। तो हमको इतना इत्मीनान हुआ कि हुसाम साहब की शख्सियत के बारे में कि डायनामिक अल्लाह ताला बना है उनको, और उनके एक के मदद से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरे को इल्म हुआ। और उनका डायनामिक जो मैं वो देख कर रुक गया बोलने का कि उनको जाना है जल्दी, तो अपने बात तो चलती रहेगी मगर उनका काम नहीं रुकना है, इसलिए मैं ये शुक्रिया ज़्यादा कर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank all for giving me this opportunity to share my experience in Galaxy Foundation. My name is Sheikh Yusuf. My course is OT technician. My journey in this college is very wonderful and interesting. I have learned so many things such as phlebotomy, PNF technique and Bell's palsy technique. I had participated so many things such like dissection of heart and lungs,
It was very interesting. Before I joining this college, I fear of injection, but after the training of phlebotomy, it is my favorite topic. Thank you so much. warahmatullahi wabarakatuh. First of all, respected Principal Mujibur Rahman sir, respected chief guest, all chief guests, and to my friends, I am Sayyid Ibrahim Hussaini. My course is a physiotherapist. Thank you for giving this opportunity, and it's my pleasure. I learn many things from this college. All the faculty touch me whatever I don't know about and make me feel shy if I don't know anything. They motivated me, especially Dr. Jafar sir and Nida ma'am. Thank you so much, and I believe that I will be a good person and responsible and successful person because I got the good teachers who makes me future bright, inshallah. And alhamdulillah for today achievement, and thank you so much for everyone. Respected to all managing director sir, principal sir and chief guest and my all friends. Myself Rishma Begum. I complete my nursing assistant. Before I joining this course, I had nothing knowledge about medical field. But now I know the very much knowledge about medical field because my faculty give me very good knowledge like a PNF, Bell's palsy technician, phlebotomy, vital signs. I am very lucky because I am the student of this college, and thank you so much my faculty. Thank you. My course is nursing assistant. Before joining this course, I am housewife. I am so grateful to be standing here in front of you all. very to us, and I want to thank all teachers present here. We as students have been able to uplift ourselves just because of your love, care, guidance and support. Each of our teachers has been the motivation support of in all respect. I especially want to thank Dr. Jafar sir for these free courses and for giving his great support. Thank you. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Respected principal sir, respected chief guest, all my dear friends. Thanks everyone. I am Mohammad Shahid. My course is nursing assistant. I want to thankful of my all teachers. Because of them I am here to speak, and thank you for giving me this opportunity, and especially I am very thankful of Dr. Jafar sir. He always motivates me and I learn many things from him. Because of him I have done the direction and attended the practicals. I was MPC background but still I know something because of you all teachers. Thank you very much.
सर का काफ़ी अच्छा सा सवाल था और जो है इसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो है 2 लेवल्स पे ये कोर्सेस चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो 10th पास बच्चों के लिए है। ये कोर्स 6 महीने की मुद्दत का होता है, जिसमें 3 महीने थ्योरी होती है, उसके बाद 3 महीने का प्रैक्टिकल्स होता है। उसके बाद में जो है हम लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे पास आउट हुए हैं। तो अब इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि जो है हमारे पास यहाँ पे बेसिक लेवल से ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो है हम ज़्यादातर उर्दू मीडियम के बच्चे और जो हाउसवाइफ वगैरह है इन लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कोर्सेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड भी है, प्राइवेट कोर्सेज भी है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, ऑलमोस्ट 30 कोर्सेस है ये, जो है 10th पास बच्चों के लिए है, जो 6 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए है। तो 3 मंथ्स थ्योरी, 3 मंथ्स प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है और एक जो 2 साल का जो कोर्स है वो पैरामेडिकल कोर्स है, जो इंटरमीडिएट बच्चों के लिए है। ये डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन से एफिलिएटेड होता है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये कोर्स। इसकी एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट है, कौन से भी इंटरमीडिएट रहो, MPC, BPC, CAC कौन से भी कर सकते हैं। और मगर ये जो अपने पास में जो है फ़िलहाल उसका फैसिलिटी नहीं है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है छोटे से उससे शुरुआत करे थे। तो इंशाल्लाह जो है जैसा अभी हम लोगों का फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया और सेकंड बैच इंशाल्लाह अब कंप्लीट होने पे है। ये इंशाल्लाह हुआ तो जो है फिर हम लोग अगर ये आगे एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 140 सीट्स की एलिजिबिलिटी है, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में 40 एडमिशन्स हुए हैं। इंशाल्लाह जैसा जैसा आगे होते जाएंगे इंशाल्लाह जो है हम लोग इसको अकोमोडेट करते जाएंगे इंशाल्लाह सोचा। और मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम का, जो आप लोग तमाम अपने बिज़ी शेड्यूल में से जो है वक्त निकाल के यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। बस हमारे बच्चों को जो है दुआओं की ज़रूरत है इंशाअल्लाह ज़वजल। थैंक यू सो मच माय फैकल्टी, माय स्टाफ, क्योंकि जो है मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली टीम के अंदर। मैं इस चीज़ का सक्सेस का क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा, ये सब के सब हम तमाम टीम के तरफ से है ये अल्हम्दुलिल्लाह। समझिए मेरा तो है इसके अंदर, मगर आई गिव ऑल दिस क्रेडिट टू माय टीम, क्योंकि मेरी टीम है तो मैं हूँ तो कॉलेज है, बस अल्हम्दुलिल्लाह यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच माय टीम, एंटायर टीम जो भी है, सब जने मेरा साथ दिए हुए हैं। मुजीब सर प्रिंसिपल सर है, हारून सूफ़ी सर है, बाखर सर एडमिनिस्ट्रेटर बैकबोन है अल्हम्दुलिल्लाह। बाखर सर नहीं है तो कुछ नहीं है मेरी नज़र में, बाखर सर इज़ द बेस्ट। निदा मैडम, तस्नीम मैडम, मंजू मैडम, फहद सर, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैव अटेंडेड, स्पेशली सर डॉक्टर नूर मोहम्मद सर। आपकी इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी आप जो है मेरे बोलने पे तशरीफ़ लाए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। थैंक यू अल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, तो फजल है आपको और हमको यहाँ पे एक अच्छी फाउंडेशन पे जमा किया है। तो अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का करम है, फजल है कि आपको और उम्र को यहाँ पे जमा किया एक फाउंडेशन में। इसका मकसद बहुत अच्छा है कि बेरोज़गारी बच्चों को रोज़गारी देने के लिए, और ये एक अपना जो फील्ड चूज़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह दवा के साथ दुआ भी मिलती है अपने को इसमें, और अपने को हलाल रिज़्क़ भी मिलने वाला है और अपने को इसमें। तो क़यामत तक सजदे में रहे मेरा ये सर आए खुदा कि तेरी नियामतों के शुक्र के लिए ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। तो मेरे भाइयों, पोजीशंस आर टेम्पररी, रैंक्स एंड टाइटल्स आर लिमिटेड, बट द वे यू ट्रीट पीपल वी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी अपने को ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत करना अपना काम है, और अपने को कामयाबी दिलाने के लिए अपने पूरे स्टाफ रेडी है अपने को लिए। अपने टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स ज़रूरी है उन्होंने अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं थैंक्सफुल अदा करना चाहता हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 मार्च 2023 को गैलेक्सी फाउंडेशन में जो है एक फ़ंक्शन मुनाक़द किया गया, जिसके अंदर जो है हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स जो का फ़र्स्ट बैच जो था जो पास आउट हुआ है उन लोगों को हम लोग जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। ये हमारा बैच जो है 1 ईयर बैक स्टार्ट हुआ था यहाँ पर हमारे न्यू सेटअप में, जहाँ जो है फलकनुमा के दामन में वाक़ है। और यहाँ पर ग्लेनफिच ग्रुप द्वारा चलाया जाने वाला ये गैलेक्सी फाउंडेशन है, जिसमें ऑलमोस्ट 30 कोर्सेस जो है पैरामेडिकल कोर्सेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं। जो है बच्चों से जो है यहाँ पर किसी तरीके का मुआवजा नहीं लिया जाता, बल्कि बच्चों को जो 10th पास बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो है मैन वुमेन सब जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो जिसके 10th क्वालिफ़िकेशन है, उन लोगों को यहाँ पर जो है हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज़ की। और 1-2 कोर्सेज़ नहीं है, ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट कोर्सेस है। तो जो है हमारा फ़र्स्ट बैच जो है पिछले साल 2022 में जो है हमारा फ़र्स्ट बैच जो एडमिट हुआ था, उनके जो है ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स यहाँ पर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरिटोरियसली जो है यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। और ये स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पर जो है आज बच्चों को इनकरेज करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करे थे, जिसमें काफ़ी सारे डिग्निटरीज आए और अपने दुआओं से जो है बच्चों को नवाजा। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि जो है ये इंस्टीट्यूट ऐसे ही जो है फले फूले, और जो है हमारी कोशिश ये रहेंगी कि जो है ओल्ड सिटी की आवाम के लिए, जो माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बच्चों को अवेयरनेस दे के पैरामेडिकल फील्ड के अंदर जो है अपने कुछ स्कोप्स बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर बहुत अच्छे हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है अपने अहलोयाल को, दोस्त अहबाब को, और आप ख़ुद भी जो है 10th क्लास जो भी पढ़े हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर आए, यहाँ पर एडमिशन ले फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये पैरामेडिकल फील्ड में अपना मुस्तक़बिल सुनहरा बनाए। इसके जो है सैलरीज बहुत अच्छे होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है ये कोर्स। थैंक यू सो मच जी। ये जो है आप यहाँ पर आकर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9346046910। मैं डॉक्टर जाफ़र, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं, या इंजन बोली चौरस्ते के पास नबील फंक्शन हॉल के बिल्कुल अपोजिट में ऑक्सीजन हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन हॉस्पिटल के बिल्कुल ही बाजू में जो है यहाँ पर हमारा कॉलेज मुनाक़िदा वाक़ है, जिसका नाम गैलेक्सी फाउंडेशन है, जो कि ग्लेनफिच ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।